So yesterday we learned the properties of ammonia, where we understood that many salts, many aqueous solutions of salts, when treated with ammonia or ammonia solution, that is your ammonium hydroxide, what they will do is they will precipitate their respective hydroxides or hydrated oxides. Now, as I told you already, sir, this particular property is very important in detection. Okay, in detection of the cations. Okay, generally, if you see, you can test the presence of zinc. Say, for example, I am having a salt in which zinc cation is present. What I did is I took this salt and I treated with, say, for example, a solution of ammonia. We all know now that solution of ammonia is otherwise called as nothing but ammonium hydroxide. Yes or no? Yes, sir. Yes. So we treated it with ammonium hydroxide. Immediately what will happen, sir? You will get a white colored precipitate of zinc hydroxide. This may be one of the confirmation for the presence of your zinc ion. Okay, so one of your confirmation for the presence of your zinc ion, right? In the same way, if you are having iron, ferric ion, Fe plus 3, even that when treated with your ammonium hydroxide, okay, aqueous solution of ammonium hydroxide, even here we are having hydrated ferric oxide, Fe2O3.XH2O. Even this has a specific color, and it also forms a precipitate, that it is forming a brown colored precipitate. Even this can be one of our tests to test the presence of your Fe3 plus ions. तो ये दोनों रिएक्शन अगर आप लोगों को याद है, जब हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, राइट, हम लोग सॉल्ट एनालिसिस करते हैं जहां पे हम लोगों को एक अननोन सॉल्ट दिया हुआ रहता है सर, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि वो कौन सा कैटायन है उसमें और कौन सा एनायन है. तो वन ऑफ द टेस्ट व्हिच यू कैन डू इज you can take the salt, prepare its aqueous solution, and you can treat it with ammonia solution, that is your ammonium hydroxide. If it is forming a white precipitate, then we can say yes sir, zinc may be present. If it is forming a brown precipitate, then we can say iron may be present in the form of ferric ion, Fe plus 3. Do we people understand this? Yes, sir. Yes. And we also know one thing, sir. Nitrogen is having a lone pair on it. This lone pair may be available for donation. Okay. This lone pair makes our ammonia a Lewis base. मैं इससे पहले भी रिपीट किया हूं एक बार. Lewis base means electron pair donor. Lewis acid means electron pair acceptor. Okay, Lewis base means electron pair donor, and Lewis acid मतलब electron pair acceptor. Do we understand this? Yes, sir. Yes. So generally it will donate this electron pair. मैं इससे पहले भी आप लोगों को बोला था ligands के बारे में. क्या बोला था मैंने सर? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए आप लोगों का कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इधर नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं या फिर उनके पास एक लोन पेयर होता है. तो देखिए एमोनिया के पास भी एक लोन पेयर है जो कि डोनेशन के लिए अवेलेबल है. तो एमोनिया को भी हम लोग क्या बोलते हैं सर? लाइगेंड बोलते हैं. याद कीजिए मैंने पहले आप लोगों को लाइगेंड का डेफिनेशन लिखवाया है. इट इज either a neutral or it is either a neutral or a negatively charged atom or molecule which has the capacity to donate its electrons to a d block element to form a complex, right? तो यहाँ पे NH3 नेगेटिवली चार्ज तो नहीं है, लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है, लोन पेयर अवेलेबल है जो कि वो डोनेट कर सकता है. इसीलिए ये एक बहुत ही अच्छा सा लाइगेंड है और ये कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है. क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir.
तो Yes, sir. ध्यान दीजिए सर, किस टाइप का कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, चलिए देखते हैं सर। when we are treating this ammonia with copper 2 plus, now remember copper 2 plus, okay, is a transition element, is a d block element. जनरली कॉपर 2 प्लस का कलर क्या होता है, ब्लू कलर्ड सोल्यूशन होता है। इस सोल्यूशन के थ्रू अगर हम लोग एमोनिया पास करते हैं, ओके, इधर आप डायरेक्ट एमोनिया ले सकते हैं, नहीं तो एक्वस एमोनिया ले सकते हैं, दैट इज NH4OH। ओके, अगर हम लोग एमोनिया पास करते हैं, what NH3 will do, you know, it will donate its lone pairs. Okay, it will donate its lone pair in the copper's vacant d orbitals and it will form a complex. क्या है ये, टेट्रा एमाइन कॉपर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेट्रा एमाइन कॉपर बोलते हैं, NH3 होल 4, CuNH3 होल 4 विद 2 प्लस। अब सर इसके बारे में खासियत क्या है कि ये जो टेट्रा एमाइन कॉपर बन रहा है, इसका कलर है डीप ब्लू, ये एक डीप ब्लू कलर्ड सब्सटेंस है। दैट मीन्स क्या हुआ, हम लोगों ने एक नॉर्मल ब्लू कलर्ड सब्सटेंस से स्टार्ट किया, और हम लोगों को पता है कि ब्लू कलर्ड सब्सटेंस में जनरली पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइट ब्लू कलर्ड कंपाउंड एक ही दिखेगा आप लोगों को, कॉपर, राइट, Cu2 प्लस ही दिखेगा, राइट। इसको लेके हम लोगों ने एमोनिया सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया, तो वो इमीडिएटली क्या हो गया सर, डीप ब्लू कलर्ड प्रेसिपिटेट बनाया। ओके, ये जो डीप ब्लू कलर प्रेसिपिटेट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, टेट्रा एमाइन कॉपर। नाउ ये जो डीप ब्लू कलर प्रेसिपिटेट बना रहा है कॉपर के साथ, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कॉम्प्लेक्स। तो जनरली ये कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, आप लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कब बनता है कॉम्प्लेक्स, जब कुछ लाइगेंड्स होते हैं हमारे पास जो कि एक डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, तब जाके हम लोग के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। चलिए एक और इसी टाइप का हम लोग रिएक्शन देखते हैं। ओके, एक और इसी टाइप का रिएक्शन देखते हैं। एक कंफर्मेशन आप लोगों को बता रहे हैं। ओके, Ag प्लस अगर सोल्यूशन में है, ओके, Ag प्लस अगर हमारे सोल्यूशन में है, उसको हम लोग अगर क्लोराइड आयन के साथ ट्रीट करते हैं, तो वो इमीडिएटली AgCl बनाता है, जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट है। देखिए मैं आप लोगों को एक बहुत खास बात बताता हूँ। Ag जो है सर हमारा, Ag सिल्वर has got a lot of affinity, towards halogens। सिल्वर को जहां पे भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी मिलेगा ना, वो उसके साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा। ओके, तो पहले हम लोगों के पास अगर Ag है, उसके थ्रू हम लोग HCl या फिर NH4Cl डाल के, ओके, हम लोग क्या किए, वहां से पहले AgCl प्रेसिपिटेट करवाए, उसके बाद उस AgCl को, ओके, देखिए अब ये AgCl जो कि हम लोगों का एक वाइट प्रेसिपिटेट है, इसको ले जाके हम लोग ट्रीट कर देते हैं एमोनिया के साथ, या फिर सोल्यूशन ऑफ एमोनिया जो कि एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे फिर से तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट इज डाइएमाइन सिल्वर, ओके, क्लोराइड, सो डाइएमाइन NH3 होल 2, NH3 होल 2 Ag, इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का Cl। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स है जो कि कलरलेस होगा। ओके, नाउ यू सी what did I say, once learn it again, see, NH3 as it is having a lone pair above it can act as a ligand. NH3 as it is having a lone pair on it can act as a ligand. Now NH3 can donate its electron pair। अब देखिए सर, NH3 अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो S ब्लॉक का कोई एलिमेंट तो रिसीव नहीं करेगा। S ब्लॉक का एलिमेंट खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, वो तो मेटल्स है, यस और नो? Yes, sir. तो NH3 या कोई भी लाइगेंड जो होगा, वो S ब्लॉक एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है, तो वो किसको डोनेट करेगा, चलो देखते हैं। सर P ब्लॉक के एलिमेंट को डोनेट कर सकता है क्या सर? तो P ब्लॉक का एलिमेंट के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेगा, लेकिन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव नहीं कर सकता है।
पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स एक एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के लिए होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव नहीं कर सकता है। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन रिसीव कर सकते हैं? हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या अवेलेबल रहता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल रहता है। चलिए, आप ये तीनों रिएक्शंस अपने नोटबुक में लिखे हैं आप लोग सब? Yes, sir. यस सर। ओके, अगर लिखे हैं तो उसके नीचे एक नोट लिखिए सर। नोट: coordination compounds or complexes, coordination compounds or complexes are generally formed by, coordination compounds or complexes are generally formed by, are generally formed by transition elements, are generally formed by transition elements, comma, this is due to the availability of, this is due to the availability of vacant d orbital, this is due to the availability of vacant d orbitals in their valence cell, this is due to the availability of vacant d orbitals in their valence cell, which have the capacity to accept a pair of electrons, to accept a pair of electrons in these orbitals, to accept a pair of electrons, to accept a pair of electrons from ligands. क्या लिखो? From ligands. In these orbitals वो मत लिखो, from ligands लिखो। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Yes. अच्छे से सोचिए सर, ठीक है? This is something which you have to very deeply understand, ठीक है? बहुत सिंपल है, ठीक है? बहुत ही सिंपल है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया बस ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो सर, one of the uses of ammonia is to use it in salt analysis. ओके, अगर किसी ने मुझे कोई सॉल्ट दिया, उसमें कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है पता करने के लिए मैं यूज कर सकता हूँ। नंबर 1, सर मुझे अगर कोई नॉर्मल सॉल्ट दिया हुआ है, एस ब्लॉक का एलिमेंट का कोई सॉल्ट अगर दिया हुआ है, ओके, तो उसको अगर मैं ट्रीट करता हूं मेरा एमोनिया सॉल्यूशन के साथ, एमोनिया, एक्वस एमोनिया का साथ, तो वो एक प्रेसिपिटेट बनाता है। जैसे कि मैंने जिंक क्लोराइड को या जिंक सल्फेट को मैंने अगर ट्रीट किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वहां पे इमीडिएटली मुझे एक वाइट प्रेसिपिटेट मिला। उसी तरह से फेरिक क्लोराइड को जब मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मिला, जो कि एक ब्राउन प्रेसिपिटेट है। बहुत अच्छा बात है सर। इसी तरह से और भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनके साथ एमोनिया जो है ये क्या बनाता है? ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो कॉपर 2+ के साथ टेट्राएमाइन कॉपर बनाता है, जो कि डीप ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। उसी तरह से AgCl सिल्वर क्लोराइड के साथ ये डाइअमाइन अर्जेंटेट या डाइअमाइन सिल्वर बनाता है, जो कि एक कलरलेस सॉल्यूशन है, कलरलेस कॉम्प्लेक्स है, जो कि व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट था, जो कि कलरलेस कॉम्प्लेक्स देगा। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ये समझना बहुत बहुत जरूरी है सर। तो पूरा एमोनिया के प्रॉपर्टीज में ये जो 4 रिएक्शंस हैं, एक है जिंक सल्फेट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
एक है तुम लोगों का फेरिक क्लोराइड विथ एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक है कॉपर 2+ विथ एमोनिया, एक है AgCl विथ एमोनिया। दीज 4 रिएक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, जबकि इन्हें याद रखना बहुत ही इजी है। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है सर, बहुत आसान है इन्हें याद करना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ता हूं, मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ यूजेस ऑफ एमोनिया। अब तक तो समझ में आ गया होगा पिछली बार के डिस्कशन से, एमोनिया का सबसे बड़ा यूज है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में। यस और नो? Yes, sir. यस। तो देखिए, एमोनिया इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स, that is ammonium nitrate, urea, ammonium phosphate and ammonium sulfate, and in the manufacture of some inorganic nitrogen compounds, the most important one being नाइट्रिक एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है हमारा? नाइट्रिक एसिड। मैं बताऊंगा नाइट्रिक एसिड का भी कुछ खास बातें हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। लिक्विड एमोनिया इज ऑल्सो यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। तो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों का जो रेफ्रिजरेटर जो होता है, अगर घर में थोड़ा सा पुराना रेफ्रिजरेटर है तो कुछ सालों में एक बार हमारा जो रिपेयर करने वाला बंदा है, सर्विस करने वाला बंदा है, आता है, उसके कंप्रेसर में एक पर्टिकुलर गैस को फिल करता है। ओके, वो लिक्विड नाइट्रोजन भी हो सकता है। लिक्विड नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ वेरी गुड refrigerant. Liquid ammonia is also used as a good refrigerant, and your liquid sodium is also used as a good refrigerant. Okay, यहाँ पे liquid ammonia के बारे में बताया है, is used as a very good refrigerant. तो क्या क्या समझ में आया? Number 1, in fertilizer industries it is used. ओके, नंबर 2 हम लोगों ने क्या बताया? इन फॉर्म प्रोड्यूसिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इट इज यूज्ड, important inorganic compounds just like your HNO3, that is your nitric acid, and it can also be used as a refrigerant. It can also be used as a refrigerant. Is that okay? Yes, sir. बोलो सुमन। सर वो स्पेस स्टेशन में यूज होता है ना? जोर से बोलो, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। वो स्पेस स्टेशन में भी यूज होता है ना सर, लिक्विड नाइट्रोजन? वो स्पेस स्टेशन में लिक्विड नाइट्रोजन यूज हो सकता है, बट फिलहाल मुझे उतना आइडिया नहीं है स्पेस स्टेशन के बारे में, तो शायद मैं नहीं बता सकता अभी। ऑलराइट, ओके सर, आजकल के फ्रिजेस में रेफ्रिजरेंट्स नहीं होते हैं, तो उसको कौन रिप्लेस करता है? उसको कंप्रेसर रिप्लेस करता है। ओके, तो तुम लोग अभी फिजिक्स में पढ़ोगे, फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स। क्या आप लोगों का खत्म हो गया है फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स? No, sir. नो सर। हाँ, तो फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग पढ़ेंगे हीट इंजन एंड क्या बोलते हैं हम लोगों का, हीट पंप करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग वहां पे कार्नोट साइकिल और उसके बाद हीट पंप करके एक चीज पढ़ेंगे। ये हीट पंप हमें क्या बताता है, कैसे एक सोर्स एक होता है, सिंक एक होता है, सोर्स से सिंक हम लोग कैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करवा सकते हैं या टेम्परेचर को डिक्रीज करवा सकते हैं, वो पढ़ोगे। तो ये कंप्रेसर के साथ यूज होता है। बट आजकल के रेफ्रिजरेटर में भी ऐसा नहीं है कि कूलेंट यूज नहीं होता है, कूलेंट रहता है। मैं बोल रहा हूं पहले में हम लोगों को बार बार रिफिल करना पड़ता था, अब बार बार रिफिल करना नहीं पड़ता है। आजकल भी रेफ्रिजरेंट में कूलेंट्स होते हैं, आपका एयर कंडीशनर में भी कूलेंट होते हैं, एक गैस को फिल किया जाता है। लेकिन पहले क्या, उसको बार बार फिल करना पड़ता था। अब लेकिन वैसा रेफ्रिजरेटर्स नहीं आता है, वो एक बार फिल होके जो आता है आप यूज कर सकते हो उसको। राइट, सो यूजेस ऑफ एमोनिया में कोई प्रॉब्लम है सर किसी को? No, sir. Very good. Yes. Now, once we have understood the uses of ammonia, let us now move towards the oxides of nitrogen. See, we have already told you that nitrogen reacts with oxygen to show almost all oxidation states, +1, +2, +3, +4. Yes or no? +5 भी शो करता है, लेकिन वहां पे नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। ओके, नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है अपना सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके, लेकिन वहां पे वो 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा, 5 बॉन्ड, मतलब उसका कोवेलेंसी 5 नहीं हो सकता है। राइट, Yes, sir. तो हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। राइट, नाइट्रोजन आप लोग खुद देखिए सर, अभी
नाइट्रोजन अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो ये किस टाइप का ऑक्साइड बनाता होगा? ऑक्सीजन हमेशा -2 शो करेगा। तो Yes, अगर sir. हम लोग इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, दैट इज आर N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसी तरह से हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ऑक्सीजन के साथ, फिर से हमारा क्रिस क्रॉस होता है। ओके, तो क्रिस क्रॉस हुआ तो हम लोगों को क्या मिल गया? नाइट्रस ऑक्साइड मिल गया, दैट इज योर नाइट्रस ऑक्साइड, दैट मीन्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ओके, अब जो तुम लोग बोल रहे हो सर ये न्यूट्रल होता है, ये एसिडिक होता है, या फिर ये बेसिक होता है, ये क्या होता है, ये कैसे बताएंगे हम लोग? पहले वो समझना। जब कोई भी ऑक्साइड को, अब देखिए ये जो ऑक्साइड्स हैं, ये जो ऑक्साइड्स हैं हमारे, ये किसके ऑक्साइड है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। नाइट्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल का ऑक्साइड, ओके, जनरली क्या होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। ओके, जनरली क्या होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। लेकिन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज N2O और NO, ये दोनों जो है ना सर, वाटर में डिसॉल्व होके कोई एसिड नहीं बनाते हैं। ये वाटर के साथ कोई भी एसिड नहीं बनाते हैं, इसीलिए इनको हम लोगों ने न्यूट्रल ऑक्साइड्स बोला है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay, when added or mixed with water they do not form any type of acidic solution, that is the reason why we are calling them as neutral oxides. चलिए अब थर्ड कंपाउंड देखते हैं। नाइट्रोजन अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीजन -2 में है, तो हम लोगों का हो गया क्रिस क्रॉस, तो हम लोगों को मिल गया डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, दैट इज N2O3। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइनाइट्रोजन trioxide. Now, this dinitrogen trioxide, where nitrogen is present in its +3 oxidation state, ये highly acidic है। ओके, इसको जैसे ही वाटर में ड्रॉप करते हैं हम लोग, ये एक एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है। ओके, नेक्स्ट, अगर हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन अपने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ऑक्सीजन -2 होता है, क्रिस क्रॉस। तो जो कंपाउंड हमें रिजल्ट हो रहा है वो है N2O4, जिसको कि हम लोग 1 2 क्रॉस करके हम लोग NO2 भी लिख सकते हैं, राइट? सो इसको हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर हम लोग इसको? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, nitrogen dioxide. Now, nitrogen dioxide is also acidic in nature, and this is a brown colored gas. And remember, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम लोगों को लैब में बार बार दिखेगा। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ ब्राउन कलर्ड गैस एंड इट इज एसिडिक इन नेचर। ओके, नेक्स्ट, वही अगर हम लोग नाइट्रोजन को +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेते हैं, देखिए अभी नाइट्रोजन मैंने डाइऑक्साइड लिखा NO2। ओके, अब इसके बारे में एक खास बात बताता हूं, ठीक है? वो बताने से पहले, क्या यहां तक सब कुछ समझ में आया? Yes, sir. Yes. नाइट्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बना रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बना रहा है? अनिकेत बाबू, साबत जी, समझ में आया? Yes, sir. चलिए, सो तो वही इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं, बहुत ही देखिए, ध्यान से देखिए सर, क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज? अगर हम लोग ध्यान से NO2 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें कुछ खास बात पता चलेगा, ठीक है? हम लोग अगर NO2 का
स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें एक खास बात पता चलेगा। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 1 2 3 4 5 रहता है। यस और नो? Yes, sir. ओके। तो क्या हुआ सर, जब हम लोगों का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, NO2 बनता है, एक ऑक्सीजन आता है और वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन हमारे नाइट्रोजन के साथ शेयर करता है। दूसरा ऑक्सीजन आता है और वो क्या करता है, एक ऑक्सीजन शेयर करता है तुम्हारा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तुम्हारा जो है नाइट्रोजन के साथ। ओके, ये कैसे शेयर किया वो भी बताऊंगा तुम लोगों को कैसे हुआ। एक ऑक्सीजन आया, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो है उसने एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, लेकिन नाइट्रोजन क्या करेगा, दूसरा ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। दैट मींस नाइट्रोजन अपना ऑक्सीजन को डोनेट किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, और इधर ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के साथ शेयर किया, जिसकी वजह से 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं फिर से बताऊंगा Yes, अगर sir. नहीं समझ में आया। यस सर। नाइट्रोजन के पास हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5। एक ऑक्सीजन आया अपना 6 इलेक्ट्रॉन लेके, और उसने क्या किया, उसने नाइट्रोजन के साथ शेयर किया। चलिए, ये तो हो गया एक चीज। नेक्स्ट क्या हुआ, एक और ऑक्सीजन जो आया, इस ऑक्सीजन को हमारा नाइट्रोजन क्या करता है सर, अपना वैलेंस सेल से वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करता है और खुद अपने पास एक इलेक्ट्रॉन रखता है। ऐसे जो स्ट्रक्चर बनता है, तो अब अगर किसी ने आप लोगों को पूछा NO2 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो आप लोगों को पता है कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है। ओके, अब इस पर्टिकुलर स्पीसीज को देखो सर, ये हम लोगों को ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जैसा दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. ओके, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मतलब ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मतलब पक्का ये स्टेबलाइज होने के लिए कुछ करेगा। हेलो, हाँ नमस्कार नमस्कार। तो समझ में आया, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसेस अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। दैट मींस व्हाट, एक NO2 मॉलिक्यूल एक और NO2 मॉलिक्यूल के साथ ऑड इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन वो लोग शेयर कर लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा तुम लोगों का, N2O4 बन जाएगा। दैट इज डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। क्या ये समझ में आ रहा है, जरा बताइए मुझे। Yes, sir. यस सर। क्या सब लोगों को NO2 का स्ट्रक्चर समझ में आया? यस सर। एंड N2O4 का स्ट्रक्चर। आपका बाकी सब स्ट्रक्चर में से NO2 एंड N2O4 का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? NO2 में क्या हो रहा है, NO2 में आप लोगों का एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है और एक ऑड इलेक्ट्रॉन बच जाता है। N2O4 में वही ऑड इलेक्ट्रॉन जो है, 2 मॉलिक्यूल आते हैं साथ में, वो दोनों क्या करते हैं सर, डाइमर बनाते हैं, और वो बन जाता है आप लोगों का N2O4, दैट इज डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ओके, N2O4 is the dimer, N2O4 is the dimer, NO2 is the monomer। ओके, NO2 मॉलिक्यूल 2 मिक्स होने से एक डाइमर बनता है जो कि N2O4 है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना लास्ट कंपाउंड, दैट इज N2O5। नाइट्रोजन अगर अपना +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो ऑक्सीजन -2 में रहेगा, -2 एंड क्रिस क्रॉस। डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड बोलते हैं हम लोग इसको, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अब खुद सोचो, ये हाईली एसिडिक होगा
क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को तुम एक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ले गए हो, ये तो चाहेगा कितना जल्दी मुझे इलेक्ट्रॉन्स कहीं से इलेक्ट्रॉन्स ले लो, इसीलिए ये हाईली एसिडिक होता है। सो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। दो नाइट्रोजन यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है सर, येट ये 4 बॉन्ड ही बनाता है, इसका कोवेलेंसी 4 ही है, ये 4 से ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बना सकता है। तो सर इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो ध्यान से देखिए सर, नाइट्रोजन के पास मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ये ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो इसने डोनेट किया एक और ऑक्सीजन को, ये बना दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल में भी एक ऑक्सीजन के साथ इसने शेयर किया और एक के साथ इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। जो एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है, एक और ऑक्सीजन के साथ ये लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लेते हैं। ये आप लोगों का N2O5 का स्ट्रक्चर है। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो एक NO2 का स्ट्रक्चर हम लोगों को पता है, तो हम लोग N2O4 का N2O5 दोनों का स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। N2O5 में सिंपली NO2 स्ट्रक्चर जो है उसी में बीच में एक ऑक्सीजन आ जाता है, दैट्स इट। तो आप लोग देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन जो है 1 2 3 4 4 ही बॉन्ड बना रहा है, इससे ज्यादा नहीं बना। समझ में आया? यस। Yes. So in this way we are going to understand the oxides of nitrogen. क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। सो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ +1 +2 +3 +4 +5 सारे ऑक्साइड्स बना सकता है, राइट? सारे ऑक्साइड्स बना सकता है सर। यहाँ पे एक एक का नाम क्या होगा, और वो एसिडिक है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स में हम लोगों का आप लोग याद रखेंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ओके, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, और एक है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 3 नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं लेकिन न्यूट्रल हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी न्यूट्रल होता है, इसको भी वाटर में डिसॉल्व करने से कोई एसिड नहीं बनता है, ठीक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑल द 3 आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। क्या ये याद रहेगा? यस सर। Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छा बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे नाइट्रिक एसिड। अब हम लोग क्या देखेंगे सर? नाइट्रिक एसिड। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। नाइट्रिक एसिड, दैट इज योर HNO3। ओके, सो नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्सो एसिड्स। ओके सर, इनमें से कौन सा ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होता है? सी, व्हाट डू यू मीन बाय पैरामैग्नेटिक? सर आप लोगों को आंखों के सामने तो यहाँ पे दिख रहा है, फिर भी पूछ रहे हैं। हाँ, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक होता है? जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच जाता है वो सब पैरामैग्नेटिक होते हैं। यस और नो? यस सर। हाँ, तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में बच जा रहा है? NO2 में एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है। यस हम सर। लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं दैट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस मींस व्हेन वी आर राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसे हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसेस बोलते हैं। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा आप लोग, देखिए पहला कंपाउंड में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मींस N2O में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, NO में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट? आप लोगों का नीचे N2O3 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, NO2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो NO2 इज अ पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड। इज दैट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक एग्जांपल 7.5 में पूछा है, why does NO2 dimerize? तो हम लोगों को पता है NO2 has odd number of electrons on it and it does not fulfill its octet. So in order to stabilize, it will react with one more molecule of NO2 in order to form a dimer and in order to fulfill its stable octet. क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग ऑक्सो एसिड्स पे। नाइट्रोजन
बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये डाउट क्लियर करते हैं कि सर ऑक्सो एसिड होता क्या है। एसिड मतलब क्या सर, कोई भी कंपाउंड जो एक H+ को रिलीज करता है। ऑक्सो एसिड का मतलब होता है जब ये H+ जो कि रिप्लेसेबल या रिलीजेबल H+ है, वो जब एक ऑक्सीजन पे अटैच्ड होता है तब हम लोग इसको एक ऑक्सो एसिड बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. याद रखिए, ये जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है जो H+ है, वो जब एक ऑक्सीजन के ऊपर डायरेक्टली अटैच्ड होता है, हमारे मेटल के ऊपर अटैच नहीं होता है, रादर वो एक ऑक्सीजन के ऊपर अटैच्ड होता है, तो तब हम लोग इसको एक ऑक्सो एसिड बोलते हैं। पक्का क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो अब देखिए, मैं इसका एक और खासियत भी बताऊंगा, ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर्स बनाते वक्त बताऊंगा कि ऑक्सो एसिड का और एक क्या खासियत है। एक तो तुम लोगों को ये समझ में आ गया, सर ऑक्सो एसिड मींस वन थिंग इज फॉर श्योर दैट द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन जो है, दैट मस्ट बी प्रेजेंट डायरेक्टली ऑन एन ऑक्सीजन एटम, नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू एनी अदर एलिमेंट। ओके, बहुत अच्छा बात। तो नाइट्रोजन कौन कौन सा ऑक्सो एसिड्स बनाता है? सबसे पहला है हम लोगों का H2N2O2, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोनाइट्रोस एसिड। हाइपोनाइट्रोस एसिड। ओके, नेक्स्ट ये क्या बनाता है? HNO2, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोस एसिड। आप लोग अभी अभी देखे थे ना सर, कौन सा देखे थे आप लोग? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर करके देखे थे। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग वाटर के साथ ट्रीट करने से क्या बनाएगा? नाइट्रोस एसिड बनाएगा, देखेंगे हम लोग इसको। एंड वन मोर इज योर HNO3, जिसको कि हम लोग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, जो मैंने ऊपर में ऑलरेडी लिखा है, नाइट्रिक एसिड HNO3। हम लोग इन तीनों का स्ट्रक्चर्स देखेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सो हाइपोनाइट्रोस एसिड, नाइट्रोस एसिड एंड एज वेल एज योर नाइट्रिक एसिड। ओके, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों का नाइट्रिक एसिड, और हमारे सिलेबस में भी यही है, हमारा नाइट्रिक एसिड ही होता है। तो चलिए, तो अभी आप लोगों को हाइपोनाइट्रोस एसिड, नाइट्रोस एसिड एंड एज वेल एज नाइट्रिक एसिड में से सबसे पहले हम लोग नाइट्रिक एसिड के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओके, हाउ डू वी प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड? सर N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करने से नाइट्रिक एसिड मिलता है। नाइट्रिक एसिड क्या लिखा है रे? Nitric acid. नाइट्रिक एसिड N2O5 को ट्रीट करने से मिलता है, येट N2O5 से हम लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट अ मेथड इन विच वी आर गोइंग टू गेट मोस्ट प्रिफर्ड प्रोडक्ट। आई विल टेल यू व्हाई इट इज एंड व्हाट इज हैपनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लैब में प्रिपेयर करेंगे। सर आप लोगों को सबको याद होगा, लेबोरेटरी प्रिपरेशन में H2SO4 एक ऐसा एसिड है, किसी भी अदर सॉल्ट को लेके अगर आप लोग H2SO4 का साथ ट्रीट करते हैं तो उसका रेस्पेक्टिव एसिड बनता है। फॉर एग्जांपल H2CO3, कोई भी एक वीकर सॉल्ट को लेके आप लोग अगर ट्रीट करते हैं, H2CO3 को लेके, सॉरी H2CO3 बोल रहा हूं, Na2CO3 को लेके से फॉर एग्जांपल मैं H2SO4 के साथ ट्रीट किया, मुझे कार्बोनिक एसिड चाहिए तो मैंने कार्बोनेट सॉल्ट को लेके ट्रीट किया, तो यहाँ पे तुमको क्या आ जाएगा? H2CO3 आ जाएगा, उसके साथ Na2SO4 आ जाएगा। उसी तरह से फॉर एग्जांपल मुझे क्लोराइड सॉल्ट चाहिए, मैंने NaCl ले लिया, उसको मैंने H2SO4 के साथ ट्रीट कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा? HCl मिल जाएगा, उसी के साथ मुझे Na2SO4 मिल जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है सर आप लोगों को? तो Yes, sir. अब आप लोग बताइए, मुझे नाइट्रिक एसिड चाहिए तो मैं क्या करूंगा? नाइट्रेट सॉल्ट ले लूंगा और उसको मैं ट्रीट कर दूंगा H2SO4 के साथ, तो क्या मिल जाएगा मुझे? HNO3 मिल जाएगा, उसी के साथ साथ सोडियम बाइसल्फाइड दैट इज योर NaHSO4 मिल जाएगा। क्या ये क्लियर है? Yes, sir.
तो इसमें एक ही मेथड नहीं, आप लोग बहुत सारे एसिड्स का प्रिपरेशन मेथड सीख जा रहे हैं। दैट मीन्स आप लोग सीख जा रहे हैं, आप लोगों का कार्बोनिक एसिड बनाना, क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना, आप लोगों का नाइट्रिक एसिड बनाना, आप लोग बहुत सारे एसिड्स को इसी से आप लोग बना सकते हैं। लैब में हम लोग जनरली सोडियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट को सिंपली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, तो हम लोगों को नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज योर सिंपली HNO3। कितने लोगों को समझ में आया लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई भी एसिड जो H2SO4 से वीकर है उसको हम लोग H2SO4 यूज करके बना सकते हैं, ये अपने दिमाग में अच्छे से फिक्स कर लीजिए। कोई भी एसिड हो जो H2SO4 से वीकर है उसे हम लोग H2SO4 यूज करके बना सकते हैं। सिंपली टेक H2SO4 एंड जो वीकर एसिड है उसका सॉल्ट ले लो, आराम से आप लोग जो है अपना एसिड बना सकते हो। ठीक है, दैट वाज योर फर्स्ट लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ योर नाइट्रिक एसिड। चलिए सर, लैबोरेटरी प्रिपरेशन तो हो गया, चलिए अब हम लोग एक इंडस्ट्रियल मेथड देखते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड समझने के लिए आप लोग सबसे पहले यूजेस ऑफ एमोनिया में जाइए। यूजेस ऑफ एमोनिया में मैंने क्या बताया था? इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, बताए थे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए हम लोग एमोनिया को यूज करके कैसे हम लोग नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्वाल्ड्स प्रोसेस। ओके, OSTWALDS, ऑस्वाल्ड्स प्रोसेस। क्या किसी ने पोगो में ऑस्वाल्ड द ऑक्टोपस कभी देखा है? Yes, sir. Yes, sir. अरे वाह, क्या बात है, मैं सोचा कोई नहीं देखा होगा। हाँ, ऑस्वाल्ड द ऑक्टोपस, उसी तरह से ऑस्वाल्ड्स प्रोसेस है ये। हाँ, ऑस्वाल्ड्स प्रोसेस हम लोग देखेंगे, राइट? तो ऑस्वाल्ड्स प्रोसेस में है क्या एग्जैक्टली? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, एमोनिया को लेंगे और उसे हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे। किसके प्रेजेंस में? कुछ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम लोग करेंगे। कौन है वो कैटलिस्ट? प्लैटिनम रोडियम गॉज कैटलिस्ट। ओके, प्लैटिनम रोडियम जो गॉज कैटलिस्ट लेते हैं हम लोग। सर क्या है ये, व्हाट इज दिस प्लैटिनम रोडियम गॉज कैटलिस्ट? ओके, सो एक एलॉय जैसा सोचिए आप लोग, प्लैटिनम एंड रोडियम के साथ बनाया जाता है, और गॉज कैटलिस्ट मतलब उसको ना हम लोग एक गॉज के जैसा बनाते हैं। दैट मीन्स प्लैटिनम रोडियम का जो है हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल्स ले लेंगे और उसको एक गॉज टाइप का, एक मैश टाइप का एक चीज बनाएंगे ऐसे। इसको प्लैटिनम रोडियम गॉज कैटलिस्ट बोला जाता है। इस प्लैटिनम रोडियम गॉज कैटलिस्ट के थ्रू एमोनिया गैस को पास करवाएंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग हीट करके और हाई प्रेशर में हम लोग जो है एमोनिया गैस को पास करवाते हैं। जब वो ऑक्सीजन के साथ, मतलब एमोनिया गैस और ऑक्सीजन दोनों हम लोग पास करते हैं प्लैटिनम रोडियम गॉज कैटलिस्ट के साथ, कितना टेम्परेचर पे? 500 केल्विन टेम्परेचर पे। और कितना बार प्रेशर पे? 9 बार प्रेशर पे। तो तब क्या होगा, एमोनिया ऑक्सीडाइज होके नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा, दैट इज योर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। along with that ये क्या रिलीज करेगा? वाटर। क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. So first of Yes, all sir. we will take ammonia. Industrially क्या होता है? How do we prepare industrially nitric acid? First of all हम लोग एमोनिया को लेके ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं in the presence of platinum rhodium gauze catalyst. In the presence of this platinum rhodium gauze catalyst, ammonia will get oxidized into nitrogen monoxide. Okay, at 500 Kelvin and 9 bar pressure. अब बड़ा आसान चीज है. Now we will take this nitrogen monoxide, okay, and we will further oxidize it. Simply oxidize it. Simply oxygen के presence में heat कर दो. This will get converted into nitrogen dioxide. This nitric oxide is again heated with oxygen in order to form nitrogen dioxide. अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को सिंपली लेके वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए सर, ये दे देगा हम लोगों का नाइट्रिक एसिड HNO3। इसके साथ साथ ही ये थोड़ा सा नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करेगा, जिसको कि वापस हम लोग अपने फर्स्ट प्रोसेस में भेज देंगे, जहां पे ये फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सेकेंड प्रोसेस में
फिर से हम लोग ये नाइट्रस ऑक्साइड जो बन रहा है इसको यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ फर्दर हीट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएंगे और फिर नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो यस सर। देखिए, sir, nitrous oxide thus formed is recycled and the aqueous nitric acid can be concentrated by distillation up to 68% by mass. Further concentration to 98% can be achieved by dehydration with concentrated sulfuric acid. मतलब 68% नाइट्रिक एसिड हम लोगों को मिलेगा। 68% मतलब अगर 100 ग्राम्स लेता हूँ 68 ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड लगेगा, बाकी कितना 32 ग्राम्स जो है तुम लोगों का वाटर रहेगा। तुम अगर चाहते हो नहीं इतना वाटर भी मुझे नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हो इस नाइट्रिक एसिड को H2SO4 के थ्रू पास कर सकते हो। तो क्या होगा, सारा वाटर हम लोग पहले से भी बता रहे हैं आप लोगों को, H2SO4 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो वो क्या करेगा सर, वाटर को एब्सॉर्ब कर लेगा और वो वाटर को एब्सॉर्ब कर लेगा तो जो बच जाएगा वो क्या है सर, सिंपली आप लोगों का प्योर नाइट्रिक एसिड। वो ऑलमोस्ट 98% प्योर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir, So what is Oswald's process? Sir, ammonia is first oxidized in the presence of platinum rhodium gauze catalyst 500 Kelvin and 9 bar. Sorry. Ammonia will get oxidized in order to give nitrogen oxide, that is nitrous oxide. And this nitrous oxide is further oxidized to give nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide is added in water to give you nitric oxide. कितना सिंपल सा प्रोसेस है, याद रखिए सर, बस फर्स्ट स्टेप को याद रखना है। और ये फर्स्ट स्टेप भी तो यूजेस ऑफ एमोनिया से याद हो जाता है हम लोगों का। सिर्फ आप लोगों को क्या याद रखना है, प्लैटिनम रोजियम गॉज कैटलिस्ट 500 केल्विन टू 9 बार प्रेशर, 500 केल्विन एंड 9 बार प्रेशर। इज दैट ओके? Yes, sir. अगर किसी ने पूछा हाउ डू यू concentrate nitric acid further from 68% to 98% by passing it through sulfuric acid. And what does sulfuric acid does here? Sulfuric acid is a dehydrating agent and hence it will try to absorb all the water out of it. क्या ये clear है? Yes, sir. Okay. Now let us see what is the structure of nitric acid. ओके, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाइट्रिक एसिड ना सर फ्यूमिंग होता है। क्या होता है? फ्यूमिंग। मतलब आप लोग नाइट्रिक एसिड को देखेंगे मतलब उसमें से जो है धुआं स्मोक टाइप का निकलते रहेगा। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज जनरली फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग HNO3 मींस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, उसमें से जो है स्मोक टाइप का चीज जो है व्हाइट कलर का स्मोक जो है वो बाहर आते रहेगा। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, ये कलरलेस लिक्विड है। ओके, जनरली लैब में हम लोगों को क्या मिलता है, 68% नाइट्रिक एसिड मिलता है, ये हमेशा याद रखिए। 68% नाइट्रिक एसिड हम लोगों को लैब में मिलता है। इसे कॉन्सेंट्रेट अगर करना है देन वी हैव टू पास इट थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड। What is the structure of nitric acid? गैसियस फेज में नाइट्रिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है सर वो कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहला चीज हम लोगों को पता है कि वो एक ऑक्सो एसिड है, तो ऑक्सीजन के ऊपर एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन रहता है और बाकी 2 ऑक्सीजन जो है ऐसे अटैच रहता है। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये एक प्लानर मॉलिक्यूल है। Nitric acid is a planar molecule. I want you people to remember the structure of nitric acid, बहुत important है। So it is a planar molecule where one of the hydrogen is a replaceable hydrogen which is attached on oxygen and other 2 are attached on nitrogen. Okay, is that clear from here? Yes. Okay. Yes, sir. Okay. Right. चलिए अब इसके आगे नाइट्रिक एसिड का जो प्रॉपर्टीज है बस यही बचा हुआ है आप लोगों का पी ब्लॉक का 15th ग्रुप में। एक्चुअली फास्फोरस का एलोट्रोपिक फॉर्म्स, फिर आपका फॉस्फीन, फिर आपका फास्फोरस ट्राइहैलाइड्स, ये सब कुछ सिलेबस से हटा दिया है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस ये कुछ भी नहीं पढ़ना है हम लोगों को। बस कल अगर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड जो है वो पढ़ लेंगे, ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़ लेंगे तो सीधा हम लोग चले जाएंगे 16th ग्रुप में। फास्फोरस एंड कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फोरस इज कंप्लीटली बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस। ठीक है सर, समझ में आ रहा है ये बात?
Yes, sir. Okay. So